Hello students, in previous video we have learned about the parallel plate capacitor filled with dielectric material, fully filled or partially filled. So on this topic, in this lecture we will take some illustrations. Okay, so student, you see here a spherical capacitor. Spherical capacitor made of two first, second, third, three concentric spheres. Three concentric spheres like this. First, second, and third. Here, the radius of first sphere is A, radius of second sphere is B, and radius of third sphere is C, correct? And here this is the first capacitor, second capacitor, correct? This capacitor is filled with dielectric material of dielectric constant K1. ओके, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K1, करेक्ट? एंड सेकेंड spherical capacitor is filled with another dielectric material of dielectric constant K2, correct? And the dielectric constant is K2, correct? Here you know this radius B and this radius C. Here two capacitor are formed, first and second. Okay, and student, you know the capacitance does not depend upon the charge stored. Either charge is stored or not. Capacitance does not depend upon the charge stored. So, by any means, the inert sphere you give positive charge, like this, correct? You know, if you see this plate, correct? This plate is isolated. So, due to induction, the inert surface of second plate getting negative charge. Student,
before giving the charge plus q to the inert sphere, this plate has no charge. Has no charge means zero charge, correct? But if you give here the positive charge, the inert surface getting negative, correct? And in same amount the positive charge is distributed on the outer surface of the second sphere, Very similarly, the outer sphere getting negative charge, correct? So find out the equivalent capacitance. So first you calculate the capacitance of first capacitor C1. The dielectric constant is K1. You know, if all of you know, this is the spherical capacitor A, B. So C is equal to 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. Very similarly, C1 is equal to K1 4 pi epsilon naught AB upon B minus A, and C2 K2 4 pi epsilon naught BC upon C minus B. And you see negative connected to positive means the capacitors C1 and C2 are in series. You know, in series combination, equivalent capacitance 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, or equivalent capacitance C is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. तो equivalent capacitance हो जाएगा C1 C2 upon C1 plus C2. तो ये हो गया आपका equivalent capacitance, करेक्ट? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट मटेरियल को एक स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोगों ने फिल किया, ओके, और फिर हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट किया, ओके. वी विल टेक another illustration. Suppose second, this is the parallel plate capacitor. Plate area is A. Plate area क्या है स्टूडेंट? A. Plate area is equal to A, and separation, total separation D है, करेक्ट. अब इसमें देखिए कैसे कैसे हम लोग जो है फिल कर सकते हैं. तो देखें, एक तो ये होगा ऐसे, हम यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे फिल कर सकते हैं, करेक्ट. और दूसरा आप ये फिल कर सकते हैं ऐसे. चलिए, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये K2 है, और ये सेपरेशन जो है इसका D/2 हो गया,
करेक्ट। अब फाइंड आउट द, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है स्टूडेंट, एक हम कॉम्बिनेशन इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे ये प्लेट एरिया, ये दो प्लेट्स हैं आपके पास, करेक्ट। इसी तरह K1 K2 K3 K4 भी हम कर सकते हैं। अब यहां पर अब ये सेपरेशन जो है स्टूडेंट D, ओके। अब इसको हम लोगों ने इस तरीके से फिल कर दिया, ये अब ये यहां K1 K2 हो गया, करेक्ट। और एक थर्ड कॉम्बिनेशन स्टूडेंट ये हो सकता है, प्लेट एरिया सब में A है। अब इसमें स्टूडेंट ये सेपरेशन D है, हाफ सेपरेशन हम लोगों ने फिल किया ये, करेक्ट। और फिर हाफ सेपरेशन ये ऐसे फिल किया, ये, करेक्ट। तो ये सेपरेशन D/2 एंड D/2, और ये हाफ है, ये हाफ हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन मोर देन वन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ आपके पास जो है इस तरह से कैपेसिटर्स फॉर्म करके मैंने दिखाए। बहुत से तरीके हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट यही है। आइए देखिए यहां, तो सभी में मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये K1 K2 एंड K3, करेक्ट। देखें तो यहां दिस कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू कैपेसिटर्स, वन हैविंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड अदर K2। तो C1 अब देखिए ये प्लेट एरिया तो सेम हो गई, तो ये हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान, बट D के प्लेस पे क्या लेंगे आप, D/2। भाई फार्मूले सभी को मालूम है, फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। इफ बिटवीन द प्लेट्स एयर इज फिल्ड, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K तो K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो ये क्लियर हो गया। सिमिलरली K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। अब हियर इफ यू गिव द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, तो ये माइनस, ये पॉजिटिव और ये माइनस, तो ये आपका यहां पर ये सीरीज हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, सीरीज। कैसे, प्लस माइनस प्लस, तो सीरीज हो गया। तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ओके। वेरी सिमिलरली तो आप कर लेंगे यहां पे C इज इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। यहां देखिए अब ये जो सेपरेशन है वो इफेक्टेड नहीं है, D है, लेकिन यहां प्लेट एरिया हाफ हो गया, तो अब C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एंड C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D, और C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो गया, ओके। अब यहां देखिए हियर
3 capacitors means it is the combination of 3 capacitors. तो देखिए बहुत इजी है ये, C1 इसका K1 एप्सिलॉन नॉट. अब ये सेपरेशन देखिए, ए प्लेट एरिया A/2 एंड ऑल्सो सेपरेशन D/2. C2 similarly K2 epsilon naught A/2 upon D/2 and this is C3. C3 तो C3 जो है K3 एप्सिलॉन नॉट. अब ये प्लेट एरिया पूरा पूरा है देखिए A अपॉन सेपरेशन D/2. तो वेरी इजी. देखिए दोनों का प्लस प्लस सेम है, तो ये कहेंगे यहां पर C1 एंड C2 आर इन पैरेलल. आर इन तो ये C डैश हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये दोनों मिलके इसके साथ ये पैरेलल है और ये सीरीज में हो जाएंगे. तो C डैश एंड C3 आर इन सीरीज. तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C डैश C3 अपान C डैश प्लस C3. करेक्ट. तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड से हम लोगों ने यहां डाइलेक्ट्रिक को फिल किया और उन कॉम्बिनेशंस का हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया. इनको अच्छे से नोट करें तो और हम इलस्ट्रेशंस लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज redistribution of charge. Redistribution of charge. इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं स्टूडेंट्स. देखें, सपोज यू हैव 2 isolated bodies A and B fixed on stands. Correct? Here 2 isolated conducting bodies A and or non-conducting A and B. Okay? Having capacitance C1 and C2 and initial potential V1 and V2 student. Is it clear? 2 bodies हैं, कैपेसिटेंस उनके C1 और C2 हैं और पोटेंशियल क्या है V1 और V2. चलिए, you know the formula of energy half CV square. First you calculate. अब यहां इसका चार्ज Q1 ले सकते हैं और चार्ज Q2 है. करेक्ट. इनिशियली एनर्जी ऑफ A, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी A half C1 V1 square. Similarly, energy stored in body B half C2 V2 square. Total energy is equal to UA plus UB. UA plus UB. Putting these values, half common C1 V1 square plus C2. Consider equation first. Okay. अब after connecting these bodies through
कंडक्टिंग वायर, करेक्ट। और यहां पहले ही मान लिया हमने V1 इज ग्रेटर देन V2। इस वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट द फ्लो ऑफ चार्ज, always from higher voltage to lower voltage। तो हायर वोल्टेज V1 है, लोअर वोल्टेज V2 है। तो अब द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज starts from A to B, from A to B। कब तक होगा? टिल द पोटेंशियल ऑफ बॉडीज सेम। कब तक होगा? जब तक कि दोनों ही बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा कि इफ यू हैव टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट वोल्टेज एंड यू कनेक्ट द बॉडीज with a connecting wire, then starts the flow of charge from higher voltage to lower voltage, correct। और कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए। तो अब इसे कहेंगे कॉमन पोटेंशियल और फाइनल वोल्टेज, करेक्ट। तो अब फाइनल वोल्टेज क्या हुआ? फाइनल वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल, फाइनल वोल्टेज और कॉमन वोल्टेज, इसको कॉमन वोल्टेज भी कहते हैं। कॉमन वोल्टेज V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये एज ए फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो ये V हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। पुटिंग दिस वैल्यूज, C1 V1, यहां Q1 इज इक्वल टू C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2। This is the formula of common voltage, correct। अब देखिए एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ A डिनोटेड बाई U डैश A, U डैश है। तो हाफ C1, you know the capacitance does not depend upon the charge stored, so C1 is constant। तो half C1, but initial voltage is V1 but final voltage is V। तो ये हो गया हाफ C1 V स्क्वायर, और U डैश भी एनर्जी स्टोर, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन B, हाफ C2 V स्क्वायर। Then final energy U dash is equal to U dash A plus U dash B, U dash। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाफ V स्क्वायर कॉमन, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एनर्जी आफ्टर connecting these bodies by connecting wire। अब देखिए
putting the value of V here, V, then U dash is equal to half C1 plus C2 and V, this C1 V1 plus C2 V2 square upon C1 plus C2 whole square. Correct? C1 plus C2 cancels, then you get half C1 V1 plus C2 V2 whole square upon, consider equation 2. Okay? Then here this is the initial energy and this is final energy. Correct? So energy difference delta U is equal to U minus U dash, initial minus final, half C1 V1 square plus C2 V2 square minus U dash half C1 plus C2, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर. करेक्ट? अब देखिएगा ध्यान से, हाफ C1 प्लस C2, वी टेक हाफ C1 प्लस C2 कॉमन, तो हाफ तो है, यहां पर C1 प्लस C2 नहीं है तो मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड जो किया था उसको कॉमन ले लिया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर. करेक्ट? ये आया. कैलकुलेशन देखिएगा भाई, हाफ C1 प्लस C2, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. करेक्ट? ये कैलकुलेशन ये किया. अब उसको स्क्वायर कर रहा हूं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये माइनस देखिए पूरे में है तो सब माइनस हो जाएंगे, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. करेक्ट? अब देखें यहां पे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस कैंसिल्स, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस. हियर C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, तो अब यहां पर हम ले सकते हैं हाफ C1 प्लस C2, C1 C2 कॉमन और यहां आया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2. करेक्ट? अब ये इट इज द होल स्क्वायर ऑफ V1 माइनस V2. सो डेल्टा U is equal to half C1 plus C2
C1 C2 and V1 minus V2 का होल स्क्वायर. This is the formula of energy difference, and one main thing is this is the positive quantity. This is the positive quantity, shows that U is greater than U dash. U is greater than U dash means one main thing is very clear to say, when we connect these bodies by the connecting wire, due to redistribution of charge, some energy will loss. Some energy will loss. One question is arises, this loss of energy is goes where? ये जाती कहाँ है? फर्स्ट, जब ये चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another, some work is done by the charge, correct? And when the work done by the charge, some heat is produced. Some heat is produced. तो एक तो हीट प्रोड्यूस हुई, उसमें ये लॉस होता है एनर्जी का. तो ये अच्छी तरह से डेरिवेशन नोट करिए. और यहीं पे अगर चेंज इन एनर्जी निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला ले लेंगे आप. चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो V1 माइनस V कर देंगे. और चेंज इन चार्ज निकालना है, चेंज इन चार्ज, वेरी इजी. अब ये इसका जो चार्ज है वो Q1 डैश हो गया. Q1 डैश हो जाएगा C1V और Q2 डैश हो जाएगा C2V. तो फर्स्ट बॉडी का जो चेंज इन चार्ज आएगा Q1 माइनस Q एंड डेल्टा Q ऑफ B इज इक्वल टू Q2 माइनस Q. Q1 माइनस Q1 डैश और ये Q2 डैश. ये पॉजिटिव आएगा तो यानी चार्ज कम हुआ, निगेटिव आएगा इसका मतलब चार्ज ज़्यादा हुआ. तो इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज. Calculation of induced charge when dielectric material is filled in between parallel plate कैपेसिटर. ओके, देखिए सपोज these are the two plates of parallel plate capacitor of plate area B capital A and separation D. In between the plates filled with dielectric material. Initially in between the plates air is filled and we give positive charge. So here negative, and initial electric field between the plates, is E naught.
ई नॉट। तो ई नॉट क्या होगा स्टूडेंट? ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा means q upon epsilon naught a. This is E naught. This is E naught. And you know, when we put the dielectric material of dielectric constant K, so here this surface getting negative and this positive. Due to this induced charge, another electric field EP is produced. EP is, according to the figure, induced electric field is opposes the initial electric field. So net electric field getting decreases student. All of you know E naught upon K. It is clear in previous videos. E naught upon K. Very similarly, potential difference is also decreases by K, and this net electric field is E naught minus EP. E naught minus EP is equal to E naught upon K. Correct? So according to this formula, initial charge Q upon epsilon naught A minus QP. QP is induced charge. QP is induced charge upon epsilon naught A is equal to Q upon epsilon naught Ka. Epsilon naught Ka. Correct? You know, epsilon naught A cancels. So here we write Q minus QP is equal to Q by K. So QP is equal to Q minus Q by K. So it is Q1 minus 1 by K. It is the formula of induced charge. It is the formula of induced charge. Okay, स्टूडेंट इसको नोट करिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं. हाँ स्टूडेंट्स, a capacitor is made of a flat plate of area A and second plate having a stair-like structure as shown in figure. If width of each stair is A by 3 width, okay, and ये आपकी width हो गई, और ये क्या है स्टूडेंट? हाइट. D. Find the capacitance of the arrangement. ओके स्टूडेंट, देखिए ये बहुत इजी है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं. आइए देखिए यहां पर सॉल्यूशन देखें. इसको हम लोग, ये प्लेट एक देखें यहां पे स्टूडेंट, ये कॉमन प्लेट हो गई. यू एज्यूम पॉजिटिव और नेगेटिव. हियर this is the first कैपेसिटर. तो ये एक कैपेसिटर आप एज्यूम कर सकते हैं C1. ये C1 कैपेसिटर हो जाएगा, और इसकी जो प्लेट एरिया होगी स्टूडेंट, ये प्लेट एरिया,
ये है a/3 और ये सेपरेशन देखिए, ये है स्टूडेंट d, करेक्ट। तो यहां पर C1 इज इक्वल टू, यू नो फॉर्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A upon D. C is equal to epsilon naught upon D. But here epsilon naught A in place by C is equal to epsilon naught A by D. This is the formula. But here epsilon naught in place of A by 3 upon D. हम ये भी कह सकते थे कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें, तो क्या हो जाता, K1 epsilon naught A by 3 upon D, करेक्ट। अब देखिए सेकेंड, जो सेकेंड प्लेट है आपकी, वो फिर हम देखिए ये यहां तक आ गया और अब ये एक कैपेसिटर आपका C2 हो गया स्टूडेंट। अब ये D और हो गया, तो अगर देखा जाए तो D प्लस D, तो सेपरेशन प्लेट का देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि ये निगेटिव प्लेट है, इसको हम लोग जो है निगेटिव, तो ये भी निगेटिव कनेक्ट है ना। तो यहां पर C2 एप्सिलॉन नॉट इन प्लेस ऑफ A, दिस इज ऑल्सो A by 3, बट फ्रॉम दिस प्लेट the distance between two plates D plus D means 2D, correct, 2D. Again stair, ये हो गया आपका थर्ड, अगेन ये अपलिफ्ट हो गई D और प्लेट एरिया A by 3, तो C3 एप्सिलॉन नॉट A by 3 upon 3D, correct. C1, C2, C3, this plate is common and also other plate is connected in same potential, means negative. So C1, C2 and C3 are in parallel. So equivalent capacitance is equal to C1 plus C2 plus, you will get final answer putting the value of C1, C2 and C3. तो ये अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B are connected to a battery of V volts, with the switch is closed, okay, the switch is now opened and the free space between the plates of the capacitors is filled with the dielectric material of dielectric constant K, correct. Find the ratio of the total electrostatic energy stored in both capacitors before and after the introduction of the dielectric material, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, अच्छा ये फेयर में सारे न्यूमेरिकल्स आप नोट कर लीजिए, फेयर पे कॉपी पेन बहुत जरूरी है साथ में रहना। चलिए ये आपको एक सर्किट दे दिया इन्होंने, एज शोन इन फिगर, गिवन टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। आइडेंटिकल मीन्स if it has capacitance C, then also C. तो एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर, तो पहले हम बिफोर एनर्जी कैलकुलेट कर लें
और एक चीज दे रखा है स्टूडेंट कि स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। तो ये स्विच जो है आपका क्लोज है, क्लोज है मीन्स हियर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, करेक्ट। तो सॉल्यूशन C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। In parallel combination, you know, voltage is same, voltage is same. So equivalent capacitance C equivalent is equal to C1 plus C2. C1 plus C2 means C plus C is equal to 2C, correct? तो initial energy before introduction the dielectric material, initial energy U, okay, U, तो U1 plus U2, तो half CV square plus half CV square means U is equal to CV square. This is the energy stored before the introduction of dielectric material, dielectric material. अब स्विच क्लोज है। नाउ when switch is opened, switch is opened and इंट्रोड्यूस द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसको हमने यहां से स्टूडेंट ये ओपन हो गया। अब इसका भी जो इंट्रोड्यूस किया मैंने, ये बिफोर था, अब हमने क्या किया इसमें स्टूडेंट एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, दोनों में ही। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि किसी एक में हम इंट्रोड्यूस करें, या दोनों के लिए कह रहा है। चलिए, तो अब जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा Kc, यहां कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। इसको आपने फर्स्ट कहा और इसको सेकंड कहा, तो ये कनेक्टेड है डायरेक्ट, और ये स्विच डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसका देखिएगा जो वोल्टेज होगा स्टूडेंट, वोल्टेज वो उस पोजीशन में, दिस कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी। तो हम यहां पर कह सकते हैं U1 डैश, U1 डैश मीन्स द एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर इंट्रोडक्शन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड स्विच इज ऑल्सो ओपनड। तो हाफ इन प्लेस ऑफ C, दिस इज Kc एंड V स्क्वायर, हाफ Kc V स्क्वायर, correct, and U2 dash half also Kc but V drops by K। अब इसका जो फाइनल वोल्टेज होगा वो होगा V by K, V by K ये मैं बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा V by K स्क्वायर, करेक्ट। तो अब फाइनल एनर्जी आ गई U1 dash plus U2 dash. Here we write energy stored, total energy stored after introduction the dielectric material and switch is now opened. So half Kc V square plus half Kc V square upon K square, K cancels। तो ये स्टूडेंट आ रहा है हम लोगों के पास हाफ CV स्क्वायर कॉमन, हाफ CV स्क्वायर कॉमन, K प्लस 1 अपॉन K। कंसीडर इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
find the ratio of the total electrostatic energy stored in both the capacitors before and after. Before and after means u upon u dash, before and after. तो क्या हुआ, before cv square and u dash cv square, टू ऊपर चला गया, k प्लस 1 अपान k, सो cv स्क्वायर कैंसिल, 2 k अपान k स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द रेशियो ऑफ इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. यू विल गेट फाइनल रिजल्ट. ओके, इसको नोट करिए. एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 microfarad. Requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires a minimum number of capacitors. Student, question clear हुआ? One electric technicians requires capacitance 2 microfarad across a potential difference 1000 volt, kilovolt, 1000 volt. But we provide to him what type of capacitors? Each capacitors of 1 microfarad. Each capacitors of 1 microfarad, or each capacitor, the maximum capacity to hold the potential is only 400 volt. कितना? 400 volt. अब जैसे अगर ये कंडीशन ना दे तो क्या है भाई, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कनेक्ट कर दो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 होगा ना. लेकिन समस्या क्या है, ये 400 वोल्ट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, देखें सॉल्यूशन. या वीडियो पॉज करें, 1 मिनट का टाइम है, पॉज करके इसको आप ट्राई करें. ओके, तो ये 1 मिनट तो हो गया, ट्राई किया आप लोगों ने. चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूं और आप जो है उसको मैच करें कहां तक सही है. टेक्नीशियन हैव मैनी कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड एंड ईच कैपेसिटर डज नॉट होल्ड द वोल्टेज मोर देन 400 वोल्ट. ये है प्रॉब्लम. बैटरी आपके पास है 1 किलो वोल्ट की. 1 किलो वोल्ट मीन्स 1000 वोल्ट. अब इसके लिए वी नो दैट इफ वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस, वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस, वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन. करेक्ट. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो अगर केवल पैरेलल लगाएंगे तो हमें 1000 वोल्ट से जैसे ही कनेक्ट करेंगे और वो होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 400, तो वो बस्ट कर जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे. अब तो इसका मतलब 1000 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टू डिवाइड द पोटेंशियल वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन.
वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट, तो वहां पर वोल्टेज डिवाइड्स in the proportion of the capacitors. So we use n capacitor, n capacitors in series. कैसे किया हमने, देखिएगा, ये n कैपेसिटर्स हमने एक सीरीज में ले लिए, करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि जो यहां पर गिवन है आपका नॉट होल्ड मोर देन 400 वोल्ट, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू 400 वोल्ट, करेक्ट। अब n कैपेसिटर्स लिए मैंने सीरीज, और इस तरह की हम लोगों ने लिया m सीरीज। कितनी, m, और अब इसको इस तरीके से ये, और इसका जो वोल्टेज है स्टूडेंट वो है 1000 वोल्ट। अब ईच का जो वोल्टेज होगा स्टूडेंट वो होगा V, और कितने हैं, और एक का वोल्टेज V नॉट मान लो, टोटल कितने हैं n V नॉट। तो वोल्टेज ऑफ ईच सीरीज, V इज द वोल्टेज ऑफ ईच सीरीज, वोल्टेज ऑफ ईच सीरीज, करेक्ट। तो V टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा इसका, 1000 इज इक्वल टू n, और V नॉट है 400, तो n इज इक्वल टू 10/4, 2.5, n इज इक्वल टू 2.5 आया। अब यहां लिख सकते हैं हम लोग कि we can not break the capacitor, we can not break the capacitor, so we use 3 capacitors in each series, तो यहां पर जो n लेना है स्टूडेंट हमको, वो लेना है 2.5 है, कम कर नहीं सकते, तो ये हो गया 3। अब बात आती कम क्यों नहीं कर सकते, अगर कम करेंगे तो वोल्टेज कम डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो जो कैपेसिटर है वो बर्स्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आगे की का नंबर लिया 3, ये हो गया, करेक्ट, ये n हो गया 3। अब देखिए स्टूडेंट, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए, अब इसका जो कैपेसिटेंस है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो ये हो जाएगा C/n बाई C, तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c अप टू n, तो n/c, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C/n, और ये पैरेलल है, तो C/n अप टू m, तो ये हो जाएगा MC/n, और यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना इसको रिक्वायर्ड है, 2 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। MC है 1 माइक्रोफैरड और n आ गया 3, तो m इज इक्वल टू हो गया 6, करेक्ट। तो टोटल सीरीज हो गई 6, और इन ईच सीरीज कितने हो गए स्टूडेंट, 3। सो टोटल कैपेसिटर्स required
भाई टोटल सीरीज हो गई m और ईच सीरीज में n है, तो ये हो गया m इंटू n। तो m इंटू n, m हो गया 6 इंटू 3 इज इक्वल टू, दिस इज द फाइनल आंसर। मीन्स अ टेक्नीशियन requires a minimum number of capacitors be 18। तो कितने कैपेसिटर से काम चलेगा इसका स्टूडेंट्स? 18 कैपेसिटर का। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी से रिलेटेड हुए, सो इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, करेक्ट? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक मोर इलस्ट्रेशंस based on the combination of the capacitors. Okay, good day student.